1 ईयर बाइबल रीडिंग प्लान, 1 साल का बाइबल रीडिंग प्लान। 1 पीटर 4 चैप्टर, एजेकियल 33 चैप्टर, 34 चैप्टर। 1 साल का बाइबल रीडिंग प्लान। पहला पत्रस की पहली पत्री 4 अध्याय, यहजकेल 33 अध्याय और 34 अध्याय हम पढ़ेंगे। इंग्लिश में किंग्स जेम्स वर्शन में से, हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। पवित्र आत्मा हमारी सहायता करो कि हम ये वचन पिता परमेश्वर आपके बिना समझ नहीं सकते हैं। हम जितना वचन समझेंगे उतना हम आज्ञा पालन कर पाएंगे, उतना हमारा अज्ञानता दूर हो जाएगा, हमारे चाल चलन बदलेंगे, हम परमेश्वर के वचन के अनुसार स्थापित हुए रहेंगे, हम स्थिर हो जाएंगे, हम दुचित्ते नहीं रहेंगे, हम गलत फैसलों में से आज़ाद हो जाएंगे, हमारा जीवन परमेश्वर को भाता हुआ हम जी पाएंगे, हमारा विश्वास बढ़ेगा, हम में भले काम हम देख पाएंगे, हम परमेश्वर की गवाही बन जाएंगे। हमारी मदद करो परमेश्वर के आत्मा, हमारी सहायता करो परमेश्वर के आत्मा। नासरी यीशु के नाम में हम विनती करते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमीन आमीन आमीन। हम पढ़ेंगे 1 पीटर 4 चैप्टर, 1 वर्स से इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। He exhorted them to cease from sin by the example of Christ. By the approaching end of all things, he exhorted them to sobriety, charity, etc. Sundry notices of comfort under persecution. 1 verse. For as much then as Christ hath suffered for us in the flesh, arm yourselves likewise with the same mind. For he that hath suffered in the flesh hath ceased from sin, that he no longer should live the rest of his time in the flesh to the lusts of men, but to the will of God. For the time past of our life may suffice us to have wrought the will of the Gentiles, when we walked in lasciviousness, lusts, excess of wine, revellings, banquetings, and abominable idolatries, wherein they think it strange that ye run not with them to the same excess of riot, speaking evil of you. Who shall give account to him that is ready to judge the quick and the dead? For this cause was the gospel preached also to them that are dead, that they might be judged according to men in the flesh, but live according to God in the spirit. But the end of all things is at hand. Be ye therefore sober and watch unto prayer, and above all things have fervent charity among yourselves, for charity shall cover the multitude of sins. Use hospitality one to another without grudging, as every man hath received the gift, even so minister the same one to another as good stewards in the manifold grace of God. If any man speak, let him speak as the oracles of God. If any man minister, let him do it as of the ability that which God giveth, that God in all things may be glorified through Jesus Christ, to whom be praise and dominion forever and ever. Amen. Beloved, think it not strange concerning the fiery trial, which is to try you as though some strange thing happened unto you. But rejoice, and as much as ye are partakers of Christ's sufferings, that when his glory shall be revealed, ye may be glad also with exceeding joy. If ye be reproached for the name of Christ, happy are ye, for the Spirit of glory and of God resteth upon you. On their part he is evil spoken of, but on your part he is glorified. But let none of you suffer as a murderer, or as a thief, or as an evildoer, or as a busybody in other men's matters. Yet if any man suffer as a Christian, let him not be ashamed, but let him glorify God on this behalf.
For the time is come that judgment must begin at the house of God. And if it first begin at us, what shall the end be of them that obey not the gospel of God? And if the righteous scarcely be saved, where shall the ungodly and the sinner appear? Wherefore let them that suffer according to the will of God commit the keeping of their souls to Him in well doing, as unto a faithful Creator. हम पढ़ेंगे पत्रस की पहली पत्री, उसका 4 अध्याय। BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। पत्रस की पहली पत्री, उसका 4 अध्याय। एक बार फिर पढ़ेंगे। पहले पत्रस की पहली पत्री 4 अध्याय पहले वचन से। पत्रस की पहली पत्री 4 अध्याय पहले वचन से। परिवर्तित जीवन। इसलिए जबकि मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया, तो तुम भी उसी मनसा को हथियार के समान धारण करो, क्योंकि जिसने शरीर में दुख उठाया वह पाप से छूट गया, ताकि भविष्य में अपना शेष शारीरिक जीवन मनुष्यों की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं, वरन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत करे। क्योंकि अन्य जातियों की इच्छा के अनुसार काम करने और लुचपन की बुरी अभिलाषाओं, मतवालपन, लीला क्रीड़ा, पियक्कड़पन और घृणित मूर्ति पूजा में जहाँ तक हमने पहले समय गवाया वही बहुत हुआ। इससे वे अचंभा करते हैं कि तुम ऐसे भारी लुचपन में उनका साथ नहीं देते, और इसीलिए वे बुरा भला कहते हैं। और वे उसको जो जीवितों और मरे हुओं का न्याय करने को तैयार है लेखा देंगे, क्योंकि मरे हुओं को भी सुसमाचार इसीलिए सुनाया गया कि शरीर में तो मनुष्यों के अनुसार उनका न्याय हो, पर आत्मा में वे परमेश्वर के अनुसार जीवित रहे। ध्यान रखिए यहाँ पर क्या लिखा है, पर आत्मा में वे परमेश्वर के अनुसार जीवित रहे और मनुष्यों के अनुसार उनका न्याय हो। शरीर में मनुष्यों के अनुसार उनका न्याय हो। मर गए हैं वो इंसान, उनके बारे में बोला गया है। ओके, जो आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ये सच बात है। मर गए इंसान के बारे में बताया जा रहा है, क्योंकि मरे हुओं को भी सुसमाचार इसीलिए सुनाया गया कि शरीर में तो मनुष्यों के अनुसार उनका न्याय हो, पर आत्मा में वे परमेश्वर के अनुसार जीवित रहे। परमेश्वर के भले भंडारी। 7 वचन से आगे, सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है। आपको यहाँ पे मैं इसीलिए बताया ये वचन इतना ध्यान से, क्योंकि मर गया इंसान को आप कुछ नहीं कर सकते थे, है ना। ये अभी की बात नहीं, ये यीशु मसीह के जी उठने का जो पुनरुत्थान का समय था, उस समय की बात मैं बता रही हूँ। वहाँ पे मर गया इंसान को कुछ नहीं कर सकते थे, लेकिन उनको भी सुसमाचार सुनाया गया, ताकि जो आत्मा परमेश्वर का सुसमाचार सुनता है उसके बारे में यहाँ पे एक विशेषता दी गई है कि शरीर तो न्याय ले लेगा, कोई बात नहीं है, लेकिन आत्मा के अंदर परमेश्वर का जीवित वचन पहुँचना ज़रूरी है। वे परमेश्वर के अनुसार जीवित रहे। परमेश्वर के भले भंडारी। 7 वचन से आगे, सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। सब में श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। बिना कुड़कुड़ाए एक दूसरे का अतिथि सत्कार करो। जिसको जो वरदान मिला है वह उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों के समान एक दूसरे के सेवा में लगाए। यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन है। यदि कोई सेवा करे तो उस शक्ति से करे जो परमेश्वर देता है। हालेलुया। ओके, हम बात करते हैं ना, तो बातों में भी ऐसे बोलना है जैसे हम प्रचार कर रहे हैं, और अगर सेवा कर रहे हैं तो किसके शक्ति से? परमेश्वर के शक्ति से। ओके,
जिससे सब बातों में यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। हालेलुया। तो जब ऐसा दो चीज़ हमारे जीवन में हम अच्छे से संभाल लेते हैं, बात करेंगे तो जैसे प्रचार कर रहे हैं, ओके, वचन बोल रहे हैं, और अगर सेवा कर रहे हैं तो हमारी शारीरिक शक्ति यूज़ किए जा रही है, तो वो शक्ति घट जाएगी, थक जाएगी। तो इसके लिए हमारी शक्ति नहीं, परमेश्वर के शक्ति से हमको करना है, ओके। जितना परमेश्वर का शक्ति हमको जाने देता है आगे, उतना जाना है, ओके। जिससे सब बातों में यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। महिमा और साम्राज्य युगानुयुग उसी का है, आमीन। मसीह के दुखों में सहभागी होना, 12 वचन से आगे। हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है, इससे यह समझकर अचंभा न करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है, पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो आनंद करो, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय भी तुम आनंदित और मगन हो। फिर यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है तो तुम धन्य हो, क्योंकि महिमा का आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है तुम पर छाया करता है। हालेलुया। महिमा का आत्मा, ओके, तुम पर छाया करता है, तो कुछ भी बुरा असर हमारे मन को छूता नहीं है, ठीक है। देखा आपने आज पढ़ा ना, कन्फेशन कबूली के जगह में भी आपने मनन करने वाले वचन में भी पढ़ा, यहोवा का बादल छाया हुआ था, भवन में भर गया, छा गया, है ना। तो वैसे ही पौलुस सिलास के बारे में भी पढ़ा आपने कि वो ऐसी आराधना, एकदम जंगलियों की तरह आराधना कर रहे थे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, वहाँ पर भी परमेश्वर का आत्मा उनके ऊपर छाया हुआ था। अब यहाँ नया नियम चल रहा है, ओके। यहाँ पे ये बता रहा है कि परमेश्वर का आत्मा छाया हुआ है, इसकी वजह से तुमको उस सारे बुरे असर कुछ असर नहीं करेंगे। समझ में आया? तो आपको भी समझ में आना चाहिए कि आत्मा छाया हुआ रहना ज़रूरी है, हमारे ऊपर छाया हुआ रखना है हमारे ऊपर। कैसे छा जाता है उसको ध्यान दीजिए। आराधना प्रार्थना करने से छा जाता है, तो आपको आराधना प्रार्थना करना पड़ेगा, आपको बारंबार वचन पढ़ना पड़ेगा, आपको वचन मनन करना पड़ेगा, आपको उपवास प्रार्थना करना पड़ेगा, आपको कलीसिया में काम करना पड़ेगा, आपको कलीसिया से जुड़ना पड़ेगा, आपको परमेश्वर की सेवा करना पड़ेगा, आपको टायथ ऑफरिंग थैंक्स गिविंग देना पड़ेगा। परमेश्वर का सब नियम आप आज्ञा पालन करना पड़ेगा। जो परमेश्वर का आत्मा चाहता है वैसा आज्ञा पालन, क्षमा करना, क्रोध ना करना, व्यभिचार ना करना, ये सारे आज्ञा पालन आपको करना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर के आत्मा के द्वारा दिया गया आज्ञा पालन, ओके, पुराने व्यवस्था के अनुसार नहीं, ओके। तो ये सारा चीज़ जब आप करोगे तब परमेश्वर का आत्मा आपके ऊपर छाया रहता है। हालेलुया। और देखिए क्या 4 वचन कहता है, फिर यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है तो तुम धन्य हो, क्योंकि महिमा का आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है तुम पर छाया करता है। तुम में से कोई व्यक्ति हत्यारा या चोर या कुकर्मी होने या पराये काम में हाथ डालने के कारण दुख ना पाए, पर यदि मसीह होने के कारण दुख पाए तो लज्जित ना हो, पर इस बात के लिए परमेश्वर की महिमा करे, क्योंकि वह समय आ पहुंचा है कि पहले परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाए, और जब कि न्याय का आरंभ हम ही से होगा तो उनका क्या अंत होगा जो परमेश्वर के सुसमाचार को नहीं मानते। और यदि धर्मी व्यक्ति ही कठिनाई से उद्धार पाएगा तो भक्तिहीन और पापी का क्या ठिकाना। हालेलुया। इसलिए जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख उठाते हैं वे भलाई करते हुए अपने अपने प्राण को विश्वास योग्य सृजनहार के हाथ में सौंप दे। हालेलुया। तो यहाँ पे आपको जो सताव होता है, जो कुछ भी होता है, अभी आपको समझ में आई, ये इंसान नहीं है, ये दुष्ट आत्मा है, व्यभिचारिणी है जो आपके प्राणों को अहेर करना चाहती है, ओके। तो इसकी वजह से आपका ध्यान अब परमेश्वर के ऊपर ज़्यादा रहना चाहिए, ना कि सताव के ऊपर।
ओके, क्योंकि इस सताव के बीच में मनुष्य और दुष्ट आत्मा है, और इस सताव को मनुष्य किया जा रहा है। देखने में मनुष्य दिखाई देता है, और सच में देखा जाए तो वो दुष्ट आत्माएं काम कर रही है उनके अंदर से। ओके, तो आप ना मनुष्य को पनिश कर सकते हैं, ना मनुष्य को समझा सकते हैं। अब मनुष्य के लिए क्या चाहिए? परमेश्वर का आत्मा हमारे ऊपर छाया रहेगा तो हम उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। ओके, तो यही लिखा है ना यीशु मसीह के बी एटीट्यूड्स में कि आप शत्रुओं के लिए प्रार्थना करो, सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। हालेलुया। तो इस प्रकार से हमारे जीवन के अंदर का ये एरिया ऑफ लाइफ, परमेश्वर का आत्मा हम पर छाए हुए रहेगा तो हम इस एरिया ऑफ लाइफ को निपट पाएंगे, सताव के एरिया ऑफ लाइफ को निपट पाएंगे और सही तरह से निपट पाएंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद हो परमेश्वर पिता। रिबांता शबियांतु खंबरहसा लात उल्लरहा अखतकिन बरोहुसा रदीना मखल्लरबहा अखातीनरबहंतरहसा लात तो नल्लल्लाह असिसिल्लरबहंबहसा लात उल एकेन बउष्कर खतीनरबहंतरहल्लरबहकसा ब्लहस्तेन आह सेखेतीनरबहंतरहसा। तेरा धन्यवाद करते हैं पिता कि तेरा स्वर्ग का सेना हम पर छाया हुआ है, हमारे इर्द गिर्द में है। तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरे स्वर्ग के सेना के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस। नासरी यीशु के नाम में ये विनतियाँ है खुदा कि ये सारे वचन हमारे जहन में रुके और हम समझ पाए और अच्छे से हम इसे फॉलो कर पाए। यीशु नासरी के नाम में हमें फिट एंड फिक्स कर पवित्र आत्मा इन वचनों में ईश्वरीय पिता रचना, डिवाइन ऑर्डरलीनेस पे हमको लेकर आ। नासरी यीशु के नाम में विनती करते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन।